सभी को जय हिंद। होप मेरी वॉइस आ रही होगी सभी को। अगर आ रही है तो चेक बॉक्स जल्दी से बता दें मेरी वॉइस क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। हाय, थैंक यू करण जी। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ टाइम बहुत कम है और ओनली 300 लोगों की कैपेसिटी है। अगर आपने अपने जिनको भी प्रोडक्ट दिया है, जो टेस्ट मनी है, अगर आपने उनको इनवाइट नहीं किया है तो हमारे पास अभी समय है, तो कृपया करके उनको इनवाइट कीजिए, क्योंकि नई टेस्ट मनी ही सबका मनोबल बढ़ाएगी, या मैं कहूँगा एग्जाम्पल सेट होंगे। जैसे पिछली वाली सुपर डुपर हिट टेस्ट मनी सेशन था, अगर आपके पास ऐसा कोई सुपर डुपर हिट टेस्ट मनी है तो यस डेफिनेटली आपको उनको इनवाइट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आज आप टेस्ट मनी बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। राइट, तो सबसे पहले तो लिंक को शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए। मीटिंग शुरू हो चुकी है और हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। राइट, कुछ लोग कह रहे हैं मेरी वॉइस स्लो है, मैं थोड़ा सा स्लो ही बोलता हूँ लेकिन फिर भी बता देंगे क्या स्लो है या सही है। ओके, तो प्लीज अपनी माइक। सही है सर, एकदम एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि हम लोगों को ये समझना है कि अपना मोबाइल का तो आप सबसे पहले तो लिंक को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी और इनवाइट कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनवाइट कीजिए उन लोगों को जो भी बड़ी टेस्टिमोनी है। ये सेशन आप सबके लिए है। हम लोगों ने स्पेशली इसको इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि सब लोग एक दूसरे की मदद कर सकें और आपको एक बेहतरीन टेस्टिमोनी मिले। राइट, और आपका इसमें भागीदारी, पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। क्लियर, मैं फिर से कह रहा हूँ, टेस्टिमोनी के लिए आप इनवाइट कीजिए, अपनी टीम को भी इनवाइट कीजिए। सिर्फ 300 लोग हैं, फिर से कह रहा हूँ 300 के बाद हम लोग किसी को भी ऐड नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। फटाफट अपना मीटिंग का स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में शेयर करिए। फटाफट आप अपनी टीम को इनवाइट करिए। आपकी पूरी टीममेट्स को आप स्क्रीनशॉट सेंड करिए। अगर आपकी अपलाइन है उनको भी शेयर करिए, आपकी डाउन प्लान है उनको भी शेयर करिए। जितने पर्सन आपके आज की मीटिंग में आएंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। एक टेस्ट मनी आपको लाखों का बिजनेस दे सकता है। तो फिक्स हमारे पास 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट के बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके,
A company that has established with keeping fundamental principles. A company expanding out to the world with the principles. A company that grows with the consumers and shares selflessly. We are Atomy. Atomy has continued to grow since its establishment in 2009, has reached global sales of 1.3 billion US dollars, also accumulated 6 million members. Beyond the satisfaction of the members, Atomy's #1 goal was customer success. Atomy's efforts do not cease even today. Providing high-quality products at an affordable price. Atomy's competitive edge lies in the nature of distribution itself. Atomy strives for providing absolute quality products at an absolute price. These are the values that Atomy has practiced from its beginning. In all of Atomy's products, including health foods, beauty cares, living, food and beverage, fashion, and household appliances, filled with the philosophy of absolute quality and absolute price. This Atomy's philosophy makes Total trusted brand, which reformed Atomy as a consumer curator. Hamonium has recorded the #1 best-selling single item in direct selling industry for 5 consecutive years. Atomy's Absolute Skincare has also become one of the best-selling products, which has exceeded the 254 million US dollars of total sales within 3 years of its launch. The fame, which has been renewed with Atomy's advanced ingredients and technology, is also loved by the consumers as it encompasses Atomy's product philosophy as well. Starting with the United States in 2010, Atomy has launched 13 branches in regions of Americas, Asia, Oceania, and Europe. Atomy is a global company that has 6 million members worldwide. With its constant annual growth, in 2019, Atomy received the 100 million. Also, more than 2,000 seminars held worldwide annually. In these communication platforms are actively performing to find possibility of Atomy's member success. Atomy continues to prepare for its launch overseas to countries like China, India, the UK, Germany, Brazil, and Colombia. By sourcing products globally according to Atomy's absolute quality, absolute price strategy, and by distributing them through Atomy's global network, Atomy is implementing its GSGS, Global Sourcing, Global Sales strategy. Atomy Park, located in Hongju City, Chungnam Province, is designed according to Atomy's unique work culture to form a team flexibly according to characteristics of each project. It is also designed to balancing the work and personal life to maximize the creativity of employees and to help the success of the members with various seminars and workshops. Atomy Park will become a home for all Atomians throughout the world. Atomy's success system that the company directly hosts the seminars and allows anyone to succeed regardless of one's personal abilities is the engine for its growth. Atomy keeps supporting partner companies to just focus on the quality of the products by paying in cash within 1 week of delivery and providing a mutual quality control system. All of such supports foster a healthy cycle of accompanied growth. Charity is must-do mission for every company. In order to improve the quality of life of the society members, Atomy as a company practices sharing, along with its employees,
partners and members. Wherever needs help, Atomy global branches become one to conduct the charity and sharing, to pursue everyone's happiness. A company that adheres to its principles to create a new culture of distribution. A company that is trusted by the world as it expands globally. राइट, सभी को जय हिंद। कितने लोगों ने कितने लोगों को बुलाया है और सबसे पहले कौन कौन कहाँ से हैं, कितने टेस्टिमोनी वाले पर्सन यहाँ पर हैं, जल्दी से बता दीजिए। Recording in progress. राइट, सभी को जय हिंद। वीडियो आवाज आ रही होगी और आप सबको जल्दी से बता रहा हूँ कि एक और टेस्टिमोनी सेशन हम लोग लेकर आए हैं। उम्मीद है सब लोगों ने दास वाला टेस्टिमोनी सेशन को देखा होगा या उस मीटिंग को अटेंड किया होगा। राइट, सारे लोग कहाँ से वो ऑलरेडी लिख रहे हैं। आप लोग लिखिए, जल्दी से लिखिए, बताइए। और उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है फिर से पूछूंगा मैं। थैंक यू सो मच। अगर आप कहाँ से हैं ये बताते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इससे क्या पता चलता है सभी लोगों को कि पूरे इंडिया से सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। राइट, गंगा देवी जी ने एंड्रेस किया है तो हम लोग वेट करते हैं। देखिए, मैं कुछ चीजें पहले से बता देता हूँ ताकि हम लोग बहुत जल्दी से, यस बांग्लादेश से भी आ गए, इंडिया से बाहर से भी ऑलरेडी लोग ज्वाइन है। तो हम लोगों को क्या समझना है टेस्टिमोनी सेशन में, ताकि आप लोग आगे के लिए जल्दी से जल्दी अपनी टेस्टिमोनी दें और सही तरीके से दें। कितने लोग सुन पा रहे हैं सभी लोग? अच्छा, कितने लोग कैमरा ऑन करके सुन पाएंगे? मुझे पता तो चले कि हम लोगों को मीटिंग में हम लोग हैं और मीटिंग के लिए आए, नाम के लिए नहीं आए, मीटिंग को एक्चुअली आए। देखते करण जी आज कितने लोग वीडियो ऑन करते हैं। हम लोग भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। कोई बात नहीं। देखिए, मैं तो सिंपल सा कहूंगा जितने लोग वीडियो ऑन कर लेंगे उनका वीडियो बन जाएगा यहाँ पर, जिनका वीडियो बन जाएगा उनका वीडियो यहाँ पे नहीं बनेगा। मर्जी तो आपकी है, क्योंकि ये तो सारे लोग शेयर करने वाले हैं और सबके स्टोरी पे और सबके फेसबुक पे और सबके सोशल मीडिया पे जाने वाला है। और हंसी के साथ रहेगा तो हंसी वाला वीडियो जाएगा और उदास वाला रहेगा तो उदास वाला जाएगा। मर्जी तो आपकी कीजिए, मैं तो क्या कर सकता हूँ। लोग बनाने वाले, लोग रिकॉर्ड करने वाले, हंसोगे तो अच्छा सा लगेगा और कृपया करके बनाने वाले बंद कर लें, नहीं तो शर्ट पहन ले और टी शर्ट पहन ले, है ना। थोड़ा सा डेकोरम भी लोगों को समझना पड़ेगा मीटिंग में। बहुत सारे लोग एब्सोल्यूट लगा के बैठे हैं सर, बहुत सारे लोग हाइड्रा लगा के बैठे हैं। ये अच्छी बात है कि सब लोग वीडियो ऑन करें। मैं लगातार नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए मीटिंग में जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग, उन लोगों को फायदा नहीं है जो वीडियो ऑन करके इस मीटिंग को सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पे फोकस नहीं है और जो फोकस नहीं है वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता है। किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? स्टार्ट करेंगे हम लोग। यस सर, 1 मिनट और। बिल्कुल 1 मिनट लेते। मैं तो वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं
ठीक है, जल्दी से कर लीजिए और फिर सब लोगों को शेयर कीजिए और जितने भी लोग हैं उनका वीडियो आना चाहिए और स्माइल सब लोग कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्ड होने वाली है, कितने लोग कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जर्नी के बारे में हम लोग पूछने वाले हैं, ठीक है। तो यस, तो क्या आप एक्साइटमेंट में हैं? फिर से एक बहुत बड़ी टेस्टिंग सेशन के लिए हम लोग लेकर आए हैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे, राइट? यस, अब ओनली 1 मिनट, क्योंकि बोल दिया तो 1 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। रेडी? चलिए, अब आप लोग हैंड रेज कीजिए। कौन कौन जिन्होंने भी जिसको भी प्रोडक्ट दिया है नंबर 1, जो सेल्फ है यहाँ पर, जिन्होंने खुद इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट और वो किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए कोई भी उनको पेशेंट थे वो किसी चीज के, ठीक है, वो लोग यहाँ पे हैंड रेज करें। लेकिन कृपया करके वो बार बार एक ही पर्सन, सरोजा सर कृपया करके आप हैंड रेज कीजिए। आप हर बार बताते हैं सेम पर्सन नहीं चाहिए, सेम पर्सन नहीं चाहिए, नए लोग चाहिए। जो भी नए लोग हैं उन्हीं को हम लोग लेंगे। पहली शर्त कैमरा ऑन, पहली शर्त कैमरा ऑन होना चाहिए, उन्हीं को हम लोग लेंगे। क्योंकि आप कौन है कैसे पता चलेगा, कौन बोल रहा है, कौन है सच्चा है झूठा है, वो मैसेज आगे नहीं जाता है, राइट? तो आप लोगों को वीडियो ऑन करना पड़ेगा। दूसरा नंबर 1 कि आपने कौन सा प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, आपको क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, पहले आपने कितने दिन किया उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, या कौन कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, या कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया। इस तरह की सारी बातों को आपको रखना है। हम लोग सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इस तरह से बताएं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम थी और उसके बाद मैंने यहाँ दिखाया, इस डॉक्टर को दिखाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, साथ में मैंने ये वाला प्रोडक्ट लिया या फिर मैंने एटमी के प्रोडक्ट लिए। कुछ भी हो सकता है। केवल 4 लोग हैं तो देखिए फिर हम लोग बाद में नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन आप लोग कर देते हैं, है ना? तो कृपया करके या तो आप अभी हैंड रेज कर दें पहले ही, क्योंकि हम फिक्स कर देंगे कि इतने लोगों को हम लोग लेंगे। 300 लोग हो चुके हैं, हाउसफुल हो चुका है। हैंड रेज सभी लोग पहले ही कर लीजिए, क्योंकि वो बार बार याद आता है कि मैं बता दूं, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना? पहले से ही सारे लोग अपने हैंड रेज कर दीजिए, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि कितने लोगों को हम लोग टाइम कितना दे पाएंगे, है ना, अच्छे से, राइट? तो चलिए इस टेस्टिमनी सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मीना है और मैं एक गवर्नमेंट मास्टर हूँ और आप सबको मैं इनवाइट करूंगा लाइन से, जैसे जैसे हैंड रेज है, और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और आप अपने बारे में बताएंगे और अपनी परेशानी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ, बिहार से हैं बिमला मैम, ठीक है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। वेट कीजिएगा जरा मैम। मैंने आपको ऑप्शन दिया है बिमला मैम, प्लीज वेलकम। आप अनम्यूट कीजिए माइक को। जी नमस्ते सर, हम बिमला बेबी बिहार से। नमस्ते मैम, बताएं। सर अभी तो हम ज्यादा दिन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हम जुड़े तो उसमें से टूथपेस्ट मंगाए जो जी, तो मेरे हस्बैंड के दांत में दर्द रहता था हरदम, वो ठीक हो गया है। मेरा पायरिया की शिकायत है, वो भी ठीक हो गया है। आपने पायरिया की वजह से आपने इसको यूज किया था, आपने टूथपेस्ट यूज करा था और टूथब्रश भी यूज करा था। जी जी, पहले टूथब्रश यूज किया है और उसके बाद बॉडी लोशन किया है, बस और कुछ तो नहीं किया, न्यू है तो कोई बात नहीं। आपने दांतों के लिए, मतलब कि ओरल प्रॉब्लम के लिए आपने टूथपेस्ट को यूज करा था। पायरिया जैसी अगर आपने तकलीफ आपकी ठीक हुई है, तो पायरिया कोई छोटी तकलीफ नहीं है, ठीक नहीं होती है दांतों की भी, ठीक है, और वो आज वो बिल्कुल ठीक है आपकी। जी ऐसा। और आपने हस्बैंड को क्या बताया, उनको क्या प्रॉब्लम थी? उसका एनी टाइम दर्द रहता था, दांतों में दर्द रहता था, रोटी भी नहीं खा पाते थे, लेकिन अब तो इस समय भुजा भी खा लेते हैं। भुजा भी खा लेते हैं। इतना प्रॉब्लम था कि वो रोटी भी नहीं खा पाते थे, मतलब चबा नहीं पाते थे, करेक्ट? जी जी।
मतलब दांत कितने मजबूत हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहते हैं बीना मैम आप? नो सर, अभी तो नहीं हुआ, पूरा जानकारी तो है नहीं, लेकिन जितना जानते हैं उतना तो हम बता दिए। ऐसे कि कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं कर नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया। इसकी वजह से जिनको फायरिया है वो लोग यूज करेंगे, और जिनके दांत कमजोर है वो यूज करेंगे इस प्रोडक्ट को, हमारा टूथपिक। धन्यवाद है बहुत बहुत। थैंक यू सर जी। राइट, तो आपने देखा मैम के बारे में, ठीक है। और बहुत सिंपल, देखिए सबसे अच्छी बात क्या, हम लोग टेस्टिमनी जर्नल से लेते हैं, और वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, उनका इनिशिएटिव वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट। मैम को मैं म्यूट कर देता हूँ, और नेक्स्ट है गुरप्रीत। गुरप्रीत मैम, प्लीज वेलकम। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर, मेरे को ना थायराइड था। अभी सबसे पहले आप अपने बारे में अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और कब से ये प्रॉब्लम है, इस तरह से बताएं तो जैसे। ओके, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं गुड़गांव से हूँ सर। और मुझे इसमें कंपनी में जुड़े हुए हो गया 1 साल। 1 साल होने वाला है सर। तो मैंने 6 मंथ तक कुछ किया नहीं था, बाकी 7 मंथ हो गए जैसे कि। तो मैंने अभी 3 मंथ से पहले मुझे ना थायराइड था बहुत ज्यादा, मतलब मेरी स्वेलिंग थी हाथ पैरों में, फेस भी मेरा बहुत ज्यादा स्वेल हो रखा था। तो मैं ना मेडिसिन ले रही थी। तो मुझे कुछ ऐसे जो जून पे मीटिंग लेती हूँ तो ये टेस्ट मनी आती, तो मैंने इसको ज्वाइन किया सेक्शन को, और फिर इससे मुझे पता लगा कि थायराइड का भी इसमें है ट्रीटमेंट। तो मैंने सर इसके लिए, थायराइड के लिए फिर मैंने मिल्क टीशल यूज करना शुरू किया, और एक मैंने स्प्रोलिना लिया। और स्प्रोलिना लिया, फिर साथ साथ ही मैंने इसमें आपका ओमेगा भी स्टार्ट कर दिया। जब जैसे जैसे मैं जूम पे मीटिंग लेती रही और मुझे इसका नॉलेज बढ़ता रहा, तो फिर मैंने कंटिन्यू ओमेगा भी ले लिया, मिल्क टीशल भी लिया, और मैंने अपने डाइट को भी थोड़ा सा मतलब लाइफस्टाइल चेंज किया। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा देखा कि मैं हीमोग्लोबिन भी ट्राई करके देखती हूँ। फिर मैंने हीमोग्लोबिन भी ट्राई किया, और मैं कल ही टेस्ट करवा के आई हूँ, मेरी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक आई हैं। राइट, रिपोर्ट आपकी। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आप कितने mg की टैबलेट खाते हैं? आपकी इससे पहले जब आपने एटमी को कोई प्रोडक्ट नहीं लिया था, आपका थायराइड का लेवल क्या था? और इस तरह से बताएंगे। और आज की जो रिपोर्ट आई है वो हाँ जी, जो इससे पहले का था वो वाली रिपोर्ट सर मेरे पास ना फोन में है, बट मेरे में नहीं है। एक्चुअली मेरे बेटे के फोन में है, तो वो भी है नहीं। और उसमें मतलब मेरे को काफी ज्यादा डॉक्टर ने ये बोला था कि बढ़ा हुआ है और आप टैबलेट स्टार्ट कर दो। मुझे 50 mg से उन्होंने स्टार्ट करने को बोला था, पर मैंने स्टार्ट नहीं करी सर जी। मैंने कहा कि मैं टैबलेट नहीं स्टार्ट करूंगी, अगर मैंने स्टार्ट कर ली तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी और mg बढ़ती चली जाएगी। बट मुझे क्या था कि मुझे पेन बहुत रहता था बॉडी में, और मेरा जो एक राइट वाला जो पैर है उसमें भी मेरा मतलब ब्लॉकेज थी नसों में। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन वगैरह शुरू किया देना। तो वो उसकी मैंने टैबलेट खाई, उससे क्या हुआ कि मेरे को ना और ज्यादा स्वेलिंग पूरी बॉडी में आनी, और मैंने सोते रहना, और बस मुझे मतलब ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं एकदम ऐसे हो गया कि मैं बेड पे पड़ी रहूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और मेरा वेट भी काफी बढ़ गया था, मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा था, मतलब जॉइंट भी मेरे बहुत ज्यादा पेन करते थे। तो उसके बाद में मैंने अब यही ओमेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ओमेगा हो गया और स्प्रुलिना हो गया, ये ऐसे मैंने एक एक करके बस सब दवाइयाँ, कुछ भी ध्यान नहीं दिया दवाइयों पे, बस इसी को मैंने कहा अब जो होगा देखी जाएगी। मैं तो इसको एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या था कि एसिडिटी थी। मैं जो मॉर्निंग में उठती थी ना, तो मुझसे उठा नहीं जाता था, मेरी आईज ओपन ही नहीं होती थी बिल्कुल। मुझे ये लगता था मुझे थोड़ी सी अदरक वाली कोई चाय दे दे तो मैं पी लूं तो मैं उठ जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता था। तो वो मुझे चाय देते थे, 2 घूंट पी के मैं उठती, तब जाके मैं वॉश बेसिन पे ब्रश करती थी। और फिर उसके बाद क्या करती थी, अंदर आती थी, फिर लगता था बेड पे लेट जाऊं, टैबलेट खा लूं, बॉडी पेन कर रही है। मैं उठाती थी टैबलेट, घर में रखती थी हमेशा कोई ना कोई पेन के लिए। सिर दर्द हो रहा, मेरी आईज ओपन नहीं हो रही, मैं वो खा लेती थी, थोड़ी देर तक ठीक रहती थी, 1 आध घंटे तक थोड़ा काम वाम कर लिया, उसके बाद फिर सेम ऐसी हो गई, फिर टैबलेट खा ली। बस ये काम था मेरा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने स्प्रुलिना स्टार्ट किया और एक प्रोबायोटिक भी स्टार्ट किया मॉर्निंग में, पहले मैंने स्प्रुलिना स्टार्ट किया। तो स्प्रुलिना से क्या हुआ कि मेरे को मतलब थोड़ा सा मतलब बॉडी में ऐसा लगा कि हाँ मुझे ना, मैं एकदम एक्टिव हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एनर्जी आ गई 2-4 दिन में। और क्या हुआ कि मैं अच्छे से सुबह मॉर्निंग में
फ्रेश होने लग गई और टाइम से एकदम मेरी मतलब आँख खुल जाती थी और मैं उठ गई। उठने के बाद में फिर मुझे हल्के हल्के पता लगा ओमेगा के बारे, तो कि इसके क्या बेनिफिट है, फिर मैंने ओमेगा भी ऐड कर लिया। फिर मुझे इसका पता लगा न्यूट्रासिटिकल का, मैंने वो भी ऐड कर लिया। फिर वो ऐसे करते करते मैंने सब कुछ ऐड कर लिया 15 से 20 दिन के अंदर एक एक करके। अब 3 महीने मुझे हो चुके हैं, कंटिन्यू करते करते 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो मैंने क्या बिल्कुल मैंने मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो इसलिए मैंने अभी कल परसों अपना ब्लड टेस्ट करवाया। एक मैंने टेस्ट करवाया, एक प्रोफाइल थायराइड की करवाई, KFT आया, LFT, मेरा मतलब एक इंसुलिन का करवाया। मेरा एक भी कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में, और मेरा वजन जो 5 किलो कम हो गया, 5 से 6 किलो कम हो गया अपने आप से। ये देख लो, वो बस मुझे लाइफ स्टाइल चेंज कर, मैंने आटा का बिल्कुल बंद कर दिया था, मीठा बिल्कुल बंद कर दिया था, और चावल बंद कर दिए थे। और ये मेरा रिजल्ट है कि मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने हस्बैंड को भी करवा रही हूँ, उनका जो लीवर है वो फैटी है, तो उनको भी मिल्क तीशल और मैंने हीमोहिम दे रखा है अभी, तो क्योंकि उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है। तो अब वो क्या था, वो जैसे ही खाना खाते हैं वो तुरंत उसी टाइम कहते हैं कि मुझे मोशन आ रहा है, वो तुरंत चले जाते हैं। उनको ये लगता है जैसे कि पेट में नाप हट गई है। वो बार बार कभी किसी नाप वाले के पास भागते हैं कि मैं धागा बंधवा के आ रहा हूँ, कुछ करवा के आ रहा हूँ। अब उनको 20 दिन हुए मुझे देते हुए, अब उनकी कोई नाप नहीं हट रही, अब कुछ नहीं। अब मैं पूछती हूँ तो अब क्या हुआ, नाप तो कह रहे हैं अब तो मोशन ही नहीं जाते, मॉर्निंग में जाते हैं बस एक टाइम। तो ये रिजल्ट है सर मेरा। ये बहुत अच्छी बात है। देखो कितनी अच्छी बात है, पहले वाले सेशन की तरह आप इस तरह से बताएं। देखिए कितना क्लियरिटी के से बोले हैं वो। और मैम रिपोर्ट्स में अब आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल आ गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, डॉक्टर को कल ही दिखाया, डॉक्टर बोल रहे हैं, मैंने कहा थायराइड की कोई टैबलेट वगैरह, तो कह रहे कि नहीं कुछ भी नहीं मैम, है ही नहीं आपको कुछ भी। तो मैं गई जैसे डॉक्टर के पास, वो एक फैमिली डॉक्टर है, तो मुझे बोले कि आप ना, मुझे ऐसा लग रहा हो कि बीमार से हो, कुछ पतले से नहीं हो गए, पहले कुछ फर्क आया है। मैंने कहा सर लग रहा है मेरे को फर्क आया? बोले, मैंने कहा हाँ, वो बोले हाँ जी। मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि नहीं, कह रही नहीं बहुत फर्क आया, आपका फेस भी बड़ा मतलब हो रहा है, जैसे एकदम आते थे बीमार से, तीसरे दिन उठ के आ जाते थे बीपी लो हो रहा है, आज मुझे ये हो रहा है। अब आप आज लग रहे हो कुछ कि हाँ आपको ने कुछ किया है। वैसे मैम सच बताओ आपने क्या किया है, किससे दवाई ले रहे हो? मैंने कहा सर आपके पास ही नहीं आई 4 महीने से, कहाँ से दवाई लूंगी, मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाई। तो बोले क्या किया फिर आपने? फिर मैंने उनको अपने इसके बारे में बताया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं इस कंपनी से जुड़ी हुई हूँ और इसका मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया। कह रहे वेरी गुड, कह रहे बहुत अच्छा, आपने क्या नाम अपने आपको, आपका पेट काफी अंदर हो गया। मैं कहा हाँ जी। मैं कहा सर, तो उन्होंने कहा एक बार वेट करना। मैंने कहा जब मैंने स्टार्ट किया तो 73 वेट था और मेरा अब 67 है। थैंक यू सो मच, गुरप्रीत मैम, वंडरफुल और बहुत बहुत शानदार। क्योंकि इसी तरह से सबको बताना भी चाहिए। अब थायराइड वाले अपने आप क्या करेंगे, इस मैम का वीडियो बहुत सारे थायराइड वाले पर्सन को दे सकते हैं। और फीमेल्स को थायराइड की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है ये गुरप्रीत मैम ने आपको समझा दिया और बता दिया। करेक्ट है ना? तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे इस वीडियो को आपको ये मिल जाएगा रिकॉर्डिंग के बाद, ठीक है, मतलब की मीटिंग के बाद। तो थैंक यू सो मच, मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही बताएं कृपया करके, क्योंकि उनके चेहरे से भी पता चलता है कि उनको कितना बेनिफिट्स हुए हैं। और उन्होंने कहा मेरे सारे पैरामीटर्स बिल्कुल, मेरे हाथों में इतने मोटे मोटे मेरे हाथ हो जाते थे, मेरे पैर ऐसे हो जाते, 2 पैर का एक हो जाता, जैसी बैठती थी लटका के तुरंत, मतलब इतनी स्वेलिंग इतनी ज्यादा, और मैं चल नहीं पाती थी। और घुटने में तो मेरे बहुत प्रॉब्लम थी, कभी कोई कहता था ये खा लो वो खा लो, मैं अखरोट की गिरियां भिगो के खाती थी, जीना नहीं चढ़ पाती थी। अभी 4 महीने पहले मेरी बेटी की शादी थी, तो मैं इतना रो रही थी कि मैं शादी कैसे करूंगी अपनी बेटी की, मैं टक टक करके आवाज आ रही थी घुटनों से। और फिर जब मैंने ये ओमेगा और ये सारी चीजें स्टार्ट की और हीमोहिम भी मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद तो बस जो मेरे को रिजल्ट आया ना, सच में मैं तो थैंक यू बोलूंगी, जो कि मुझे शिवचरण जी हैं हमारी टीम में, जो उन्होंने हमें जोड़ा और मैं इससे जुड़ी, और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको सबको यही बोलती हूँ कि दवाई के पास मत जाओ, दवाई छोड़ दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं तो अपना हर टाइम पे लेती हूँ, हर टाइम पे देखो पूरा बॉक्स मैंने हीमोहिम का अपने पास, बस टाइम टू टाइम वर्क अपना करती रहती हूँ कि अभी क्या खाना है। पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया मैंने। मॉर्निंग में मेरी अपने आप 5 से 6 बजे आँख खुल जाती है, और जो कि मैं 12-12 बजे तक बिस्तर में पड़ी रहती थी, मुझसे काम नहीं होता था। थैंक यू, बहुत शानदार। ये एनर्जी बता रही है मैम को कितना अच्छा रिजल्ट आया। ये मानते हैं तो चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दीजिए कि उनके रिजल्ट्स बहुत शानदार है। मैं बुलाता हूँ डॉक्टर सरोज मैम को, ठीक है? मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं बेस्ट टू बेस्ट टेस्टिमनी आपको मिले। तो मैंने
ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, 1 मिनट 20 सेकंड का, प्लीज वेलकम। क्योंकि मैंने पिन किया है तो मैम प्लीज अपना परिचय दें कंप्लीट और फिर आगे कंटिन्यू। आई एम डॉक्टर सरोज सिंह। मैं लास्ट 16 ईयर से मेडिकल फील्ड में लोगों की हेल्प कर रही हूँ एंड बट मुझे ये था कि मुझे मैम म्यूट हो गया आपका, म्यूट, अनम्यूट कीजिए। यस सर, मैं एलोपैथिक से ऑलरेडी बहुत कहना चाहिए, मेरे फादर को मैंने देखा था, काफी हेल्थ इश्यूज आए थे, तो मैं हमेशा चाहती थी कि एलोपैथिक में क्या है कि इमरजेंसी के लिए डिजाइन हुए ड्रग्स थे, बट अभी क्या लोगों ने उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया। तो मैं काफी टाइम से सर्च कर रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो कि ऑथेंटिक हो, ऑर्गेनिक हो। तो डॉक्टर खुशबू के थ्रू मैं डॉक्टर रजत जी जो है ना, डायमंड मास्टर हमारे टीम चेतक के, उनके ग्रुप में मैं ऐड हुई। फिर डॉक्टर खुशबू ने मुझे फोर्सफुली बोला कि मैम आप ये देखो, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में उनको यूज करना शुरू किया, देन उसके बाद अपने पेशेंट्स को मैंने दिया, तो काफी बेटर रिजल्ट्स मिले। अगर आप मुझे 1 सेकंड का परमिशन दे तो मैं आपको कुछ शेयर कर सकती हूँ। आई हैव अ गुड रिजल्ट। मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, मैं आपको पोस्ट करता हूँ, आप शेयर कर देते हैं। यस प्लीज। यस वेट। देखिए जल्दी से सभी लोग एक्साइटेड हो जाए क्योंकि डॉक्टर सरोज मैम आपको कुछ दिखाना है। एलोपेशिया, ये तो अमेजिंग बात बता रहे हैं। और मेरे पास हॉस्पिटल में कल ही एक एलोपेशिया का पेशेंट मुझसे टकराया और मैंने जस्ट बताया। तो सर इसका मैं आपको हिस्ट्री दूं, इस लड़की ने मोर देन 4 इयर्स कहना चाहिए सारे डर्मेट से लेके ट्राइकोलॉजिस्ट से लेके हर जगह उसने अप्रोच किया था। उन्होंने उसको स्टेरॉइड्स भी दिए, इंजेक्टेबल भी दिए, एज वेल एज मुझे वो पता नहीं कोई जोक होता है उसकी थेरेपी करते हैं। मैम स्क्रीन को स्टॉप कीजिए। श्योर सर, श्योर। ताकि आपका आगे। थैंक यू सो मच। यस कंटिन्यू। सॉरी वो भूल गए। मैंने को उस पेशेंट ने लास्ट 4 इयर्स सारे डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लिया था, बट समवेयर किसी ने उसको बोला कि एक बार डॉक्टर सरोज के पास जाइए, वो मेडिसिन कम देते हैं, वो आपको एक्चुअली मैं जनरली सर डाइट प्लान करती हूँ पेशेंट्स का, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उनको बोलती हूँ कि आपका जो डिफिशियंसी है उसको थोड़ा सा कवर अप करिए थ्रू सप्लीमेंट्स, बिकॉज सप्लीमेंट्स कोई मेडिसिन नहीं है, वो एक आपकी डाइट है। तो अगर वो डिफिशियंसी है तो प्रॉब्लम्स आती ही है। सो विद इन 5 इयर्स आपने देखा इसका इतना सुंदर रिजल्ट है, और ये डिप्रेशन से भी बाहर आ गई, बिकॉज वो डिप्रेशन में चली गई थी लड़की, क्योंकि इतनी कम एज में अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बहुत कहना चाहिए कि सोसाइटी से कट हो जाते हो, अपने को थोड़ा आइसोलेट कर लेते हो। तो अभी बहुत खुश है वो, और मैंने इसको हीमोहीम, रूट वाइटल, स्पिरुलिना ये सारी चीजें दी थी, और पूरा अपना जो कहने चाहिए ऑयल एसेंशियल वो मैंने दिया था उसको। एग्जांपल से हम देखिए, एक तो क्वेश्चन रहेंगे ताकि इसको और क्लियरिटी के साथ में लोगों को पता चले। जैसे आपने ऑलरेडी आपने बताया हीमोहीम दिया आपने, ठीक है, रूट वाइटल दिया आपने। रूट वाइटल तो जैसे अभी आया, तो जैसे आपने कब से इनको स्टार्ट किया, तो ये कितने दिन में? सर रूट वाइटल या ये विद इन 5 मंथ सर, मतलब 5 महीने में इतना अमेजिंग रिजल्ट मैंने नहीं सोचा था। बट आप देखिए एग्जैक्टली विद इन 5 मिनट्स जब रूट वाइटल आया था लास्ट 5 मंथ्स बैक ना, तो अभी तो शॉर्टेज है। इनिशियली मैंने वही दिया था उसका एम्प्यूल स्पेशली, उसके बाद जब थोड़ा शॉर्टेज हुआ तो हमने अपना हेयर टॉनिक भी उसको रेगुलर बेस पे दिया है। अलावा कोई डाइट जैसे आपने बताया, स्पेशली कोई डाइट या समथिंग, ताकि ये सर डाइट प्लान में मैंने, हाँ डाइट प्लान में मैंने स्पेशली उनको बोला
बात है कि जनरली देखो हेयर फॉल कब होता है सर, जब आपकी बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसी हो, मैग्नीशियम और जिंक स्पेशली। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि बाल एक मतलब एक बाल जने लोग सोचते नॉन वाइटल है, मींस जान नहीं है, बट इनसाइड द स्कैल्प उनमें जान है। तो हमेशा हम सुपरफिशियली कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हमें इंटरनली भी उसको पूरा ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा, तो ब्लड अगर आपकी रूट्स तक नहीं जाएगा तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, फिर बाल कैसे ग्रोथ करेगा। सो उसको पूरा मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा डाइट फॉलो कर, स्पेशली मॉर्निंग आज में उसका प्रोटीन डाइट रखा था मैंने। आइदर कुछ भी वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं सोक करके, या कैनिचे स्प्राउट्स ले सकते हैं, मतलब प्रोटीन डाइट इनिशियल स्टेज, मतलब एम्प्टी स्टमक हमेशा प्रोटीन ही जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि चाय कॉफी ले लेते हैं और वो बहुत हार्मफुल होता है। और इसके अलावा अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हो तो मुझसे वेलकम। आपका वीडियो ऑफ हो गया। डिवाइस मैम तो आई थिंक आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर सुरेश मैम? माइक तो नहीं बट वॉइस नहीं आ रही। राइट, चलिए अभी हम लोग फिर से मैम को ले लेंगे। राइट, ऑलरेडी को होस्ट है तो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे मैम का, तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ राकेश जी के पास। राकेश जी कैमरा ऑन कीजिए, तभी टेस्टिमनी आपकी मानी जाएगी। थोड़ा सा सर नमस्कार। सर वीडियो ऑन कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार राकेश सर। मेरा नाम राकेश कुमार दुमपलवार उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ और मैं ऑटोमिक बिजनेस के अंदर स्पेशल एजेंट हूँ। और मेरे साथ में मेरे एक दो टेस्टमनी है जो मेरे अपने परिवार के साथ में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो बता रहा हूँ मैं। 20 दिसंबर 2023 के दिन सुबह मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तो किसी अज्ञात वाहन ने मेरी टक्कर मार के मेरा एक्सीडेंट कर दिया। मैं तुरंत गिरा और गिरते समय बेहोश हो गया और सिर से ब्लीडिंग बहुत तेज से फुहारे जिस टाइप से उड़ते उस टाइप से ब्लीडिंग हो रहा था मेरा। क्योंकि मैं उससे पहले मैंने काफी लंबे समय से ओमेगा से ले रहा था तो ब्लड मेरा काफी पतला था। तो जब मैं गिरते समय वो काफी मतलब वो हो गया, हेमरेज हो गया और ब्लीडिंग को होने लगा। कोई व्यक्ति ने मेरी सहायता नहीं करी और कैंप से काफी देर तक मैं वही कैंप से रोड पे खड़ा रहा। एक कैंप से अज्ञात बच्ची ने मुझे क्या से हॉस्पिटल तक पहुंचाया और मैं पूरी तरह से बेहोश था। उसी बीच गुरुराम जी का फोन आया मुझे मतलब बात करने के लिए। तो मेरी बिटिया ने फोन उठाया, तो मेरी बिटिया भी डॉक्टर है, यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो बिटिया ने उठाया और उनको अंकल को बोला कि सर बोले तो क्या पापा का एक्सीडेंट हो गया और ऐसी कंडीशन है बेहोश है बोले। तो गुरुराम जी ने एक ही बात बोली कि बोले अपने पास हीमोजिन है कि नहीं? तो बोले हाँ है बोले। तो बोले उनको हर 4 घंटे में एक हीमोजिन तुरंत पिलाना चालू करें। तो बिटिया ने बोली सर अब तो होश में ही नहीं। बोले नाक में नली लगी है। बोले नली के माध्यम से आप उनको हीमोजिन दीजिए बोले। बिटिया और क्या किसी डॉक्टर की बात मानना मत बोले, आप तो अपना काम करते हैं। तो बिटिया ने एक पाउच मुझे हर 4-4 घंटे में दिया। 19 घंटे में लगातार बेहोश रहा। धीरे धीरे मुझे होश आना शुरू हुआ मतलब तो मैं करीब 24 घंटे के बाद में मैंने धीरे धीरे पूरी तरह से मतलब इसमें नॉर्मल स्थिति में आया और मैं 6-7 दिन के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ होकर मैं अपने 28 दिसंबर को अपने घर आ गया। उस बीच मेरे घर पे लोगों को आना जाना से लगा रहा और लोगों ने मुझे बताया कि बोले 1 जनवरी 2024 से आपकी प्रमोशन की ट्रेनिंग होने वाली इंदौर में, तो आप जा सकते हो। मुझे क्या से मेरे सिर में पट्टा बन रहा था, 12 के टाँके आए थे सिर में और वो टाँके मेरे खुले भी नहीं थे मेरे और सिर में पट्टी बांधकर मैं वैसे ट्रेनिंग में गया इंदौर में। ट्रेनिंग अटेंड करी मैंने, प्रमोशन हुआ मेरा और 160 किलोमीटर मैंने दूर जाके ज्वाइन भी करा। लेकिन इसी बीच मैंने हीमोन छोड़ा नहीं। यहाँ पे मेरे शुरू में 4 पाँव चढ़े थे, फिर मैं 2 पे आ गया। उसके बाद फिर मैंने नोनी ली, फिर ओमेगा मेरी कंटिन्यू चली। फिर घर वालों ने मुझे खस्ता खस्ता हलवा बादाम का हलवा जो भी जो टाइम से घरगुती इलाज थे वो सारे करते रहे और मैं आज पूरी तरह से आपके सामने स्वस्थ हूँ। डॉक्टर का ये कहना, जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था उनका कहना था, 1 महीने बाद जो मुझसे बोला कि बोले सर एक चीज बताओ, आप बोले कि आपकी उम्र कितनी है? तो मेरे सब चीज 59 रनिंग चल रही है। तो बोले 59 रनिंग में आपको सिर्फ चोट लगने से मतलब ब्लड हुआ था, हेमरेज हुआ था बोले, बाकी आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है बोले।
HbA1c नॉर्मल है, उसके बाद में इको नॉर्मल है, हार्ट की तमाम पोजीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बोले एवरीथिंग ओके है। बोले तो बोले ये बताओ कि आप हमारी दवा से ठीक नहीं हुए, बोले आप क्या खा रहे हो ये बताइए। तो मैंने बताया सर मैं हीमोहिम और ओमेगा खा रहा हूँ। तो बोले जब आप अमृत खा रहे तो हमारा जहर क्यों खा रहे हैं? बोले सर ये जहर भी आपको चालू हो रहा है। मैंने कहा तो इमीडिएट उन्होंने मेरे सब चीज बंद कर दी और ओमेगा मेरा आज भी चल रहा है, हीमोहिम चल रहा है। ये हीमोहिम देखो मेरे साथ में रहता है, बहुत मेरे से लेता हूँ उसको। और आज मैं 62 साल का हो गया हूँ और 62 साल की उम्र में मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यू टू कैम से ऑटोनिक प्रोडक्ट्स की भी आपके। तो ये मेरी कैम से मेरी टेस्ट मनी है। इसी प्रकार से अभी के नाम से मतलब पिछले महीने 28 तारीख को हमारी श्रीमती को किचन में कुछ काम करते के दौरान उनको झुकना पड़ा। तो झुकने के दौरान ये हुआ कि उनकी कमर की नस दब गई, मतलब तो वो वैसी वैसी आके मतलब लेट गए। तो क्या से हमारी बिटिया ने मुझे बताया कि बोले क्या से मम्मी को ऐसा हो गया, अपने को डॉक्टर के पास इंदौर ले चलना है। तो मैंने इंदौर को जाने की जरूरत नहीं, अपने उनका इलाज घर में करेंगे। मैंने हीमोहिम के सुबह दोपहर और शाम 3 पाउंड दिया। उसके बाद अपने ओमेगा जो है वो 3 टाइम दी और शिलाजीत और मोरिंगा वो एक सुबह शाम इस प्रकार से दी। 3 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आज उनकी ये सब चीजें चल रही है, लेकिन अब मैंने उनका डोज कम कर दिया और उनकी वो जो नसों की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और अंतिम में आखिरी और एक टेस्ट मैंने बताता हूँ। हमारे समधी है अजमेर के अंदर, तो उनको ये हुआ कि कैंप से 25 मई को अचानक लूज मोशन हाथ में लगे और लूज मोशन के चलते ही उनको अचानक हार्ट कैंप से जो अपनी गैस थी वो गैस बढ़ने लगी और गैस की वजह से बढ़ने से वो हार्ट को जाके दबाने लगी। तो उनको अचानक मतलब हार्ट पेन शुरू हो गया। तो रात में 3-1 बजे करीबन उन्होंने मित्तल हॉस्पिटल अजमेर के अंदर रात में जाके उनको भर्ती कराया। सुबह जब उनकी एंजियोग्राफी हुई तो एंजियोग्राफी से डॉक्टर ने करी, उनका नाम है राहुल गुप्ता। तो उन्होंने हमारे दामाद को बताया कि बोले पापा का जो है मतलब ब्लॉकेज नहीं है, मल्टीपल ब्लॉकेज है। उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने भेजी, हमें भेजी मतलब अपने बिटिया को दिखाने के लिए। और इनका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन ही एक इलाज है, बाकी स्टेंट डालने की कोई संभावना नहीं है। और ये इलाज भी बोले अजमेर में नहीं होगा, ये सिर्फ जयपुर में हो सकता है। तो बोले आप कहो, तो बोले क्या नाम से बोले मैं डॉक्टर से बात कर लूँ। तो दामाद ने हमारे को बोला डॉक्टर से बात करो, हम लेके जाते हैं बोले। तो उसके बीच उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमसे ऐसी बात है तो क्या करें। तो मैं आ रहा हूँ, उसके बाद अपन चलते हैं। तो 27 तारीख को हम लोग मई में मैं और हमारी बिटिया दोनों अजमेर के लिए रवाना हुए। 28 तारीख को हम अजमेर पहुंचे और सारा हमको प्रोसेस करने के बाद में उनको हमने एम्बुलेंस में डाल के मतलब जयपुर की तरफ बढ़े। जब हम जा रहे थे तो ये हुआ कि हमारे जो समधी जी उन्होंने बोला कि साहब आप मुझे हमसे जो आपके पास प्रोडक्ट है वो भी दे सकते हैं मुझे हेल्प के लिए। तो मैंने हीमोहिम का एक पाउच फाड़ा और एम्बुलेंस के अंदर ही मैंने लेटे लेटे उनको पिला दिया। उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि जब हम रुंगटा हॉस्पिटल जयपुर पहुंचे तो फ्रेश होने गए तो उन्होंने आके मुझे बताया कि साहब बोले इस मतलब पाउच का ये मुझे फायदा हुआ कि मेरा जो पिछले 4-5 वर्ष से जो मोशन नहीं हो रहे थे वो सारे मेरे एकदम क्लियर हो गए और मेरी गैस की जो समस्या लगभग खत्म हुई और मेरे को हाथ में काफी आराम लग रहा है। मैं सब अपन वो तो अच्छी बात है, पर अब जो हॉस्पिटल में अपना आए हैं तो अपने हाथ पेशेंट तो अपनी जगह है। तो ठीक है बोले। फिर हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने 1 जून 2026 को उनका ऑपरेशन करने का तय किया। तो मेरे पास 4-5 दिन मिल गए थे। तो मैंने हीमोहिम सुबह दोपहर शाम दिया, उसके बाद में ओमेगा दी सुबह दोपहर शाम, उसके बाद नोनी जूस दिया। और उसका ये रिजल्ट आया कि जब ऑपरेशन हुआ मतलब तो शाम को 7 बजे जब डॉक्टर साहब बाहर निकले तो हम सब परिवार के लोगों ने उनको डॉक्टर साहब से मतलब उनके आगे की स्थिति पूछी। तो डॉक्टर साहब ने बोला ऑपरेशन तो सफल हो गया है बोले, लेकिन चूंकि एज ज्यादा है तो इसलिए बोले ये कम से कम 24 से 48 घंटे बाद ही होश आएंगे बोले। और बोले मैंने इनको वेंटिलेटर पर रख दिया, 2 मशीनें और एक्स्ट्रा लगा दी है बोले। और इनको चूंकि मल्टीपल ब्लॉकेज है बोले तो इसलिए अभी कहना मुश्किल है जब तक होश में नहीं आते बोले। और जब तक इनका यूरिन पास नहीं होता जब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। पर ऑपरेशन हमारे हिसाब से सफल हो गया। ऑपरेशन करने के बाद वो कैंप से वो चले गए। जब सुबह वो कैंप से 8 बजे आए तो हमारे समधी जी ने हाथ पे इलाज चालू कर दिए थे, आंखें पकड़ना चालू कर दी। उसके बाद उन्होंने हमको बताया नहीं। जब शाम को फिर विजिट करने आए तो ये हुआ कि जो हमारे समधी जी उन्होंने डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी तरह से बात करी पूरी तरह से मतलब। और ये पूछा भाई मेरा ऑपरेशन कैसे हुआ, मैं कैसे हुआ, मैं कैसे ठीक होऊंगा कि नहीं हुआ, घर कब तक हुआ, मैंने बहुत सारी बातें करी। तो डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित हो गए कि बोले इस पेशेंट के अंदर इतने सारे रिजल्ट और 24 घंटे के अंदर ही आ गए बोले। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने हमसे अंदर की पूरी जानकारी दी। बोले साहब मतलब हमसे ऑपरेशन सफल रहा और बोले पेशेंट बोले पूरी तरह से होश में आ गया और 3 रोज बाद में उनको बोले टाइम से वो कर दूंगा मतलब आईसीयू से बाहर निकाल दूंगा। तो मेरे दामाद ने उनसे डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब बोले ये मेरे ससुर जी है, ये आपसे कुछ बात करना चाहते। तो मैंने उनको हाथ वो करे मतलब जो है और मैंने सब जो पेशेंट के अंदर जो पॉजिटिव जो रिजल्ट आए हैं उनके उसके पीछे एक रीजन है। तो बोले क्या?
तो मैंने क्या 4 रोज पहले मैंने ऑपरेशन के इनको ये प्रोडक्ट उनको देना चालू करे थे, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो मैंने क्या मेरा एक निवेदन है आपसे, तो मैंने क्या मैंने ये जो प्रोडक्ट्स है ये आप अपने यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है उन सबको दे दो और जल्दी चुक जाने। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि बोले हम ये प्रोडक्ट सबको दे नहीं सकते। मैंने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि बोले ये मेडिसिन नहीं है, बोले अगर मेडिसिन होती तो बोले काउंटर पे आ जाती, बोले हम इसलिए दे नहीं सकते। तो मैंने क्या मेरा एक निवेदन है, तो बोले क्या? मैंने आप इसकी वीडियो सुन लीजिए और उसके बाद आप निर्णय लीजिए। बोले मेरे पास इतना टाइम है नहीं, बोले मैं रोज के 2 ऑपरेशन करता हूँ, बोले वीडियो देखने का मेरे पास समय नहीं है। अगर कंपनी की कोई रिसर्च पेपर हो तो आप मुझे दे दो, मैं उसकी स्टडी करूंगा और अगर अच्छा लगा तो बोले मैं अपने घर में यूज कर सकता हूँ। तो फिर मतलब मैंने अभी क्या नाम से शिखा मैडम से बात करी थी करीब 15-20 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे रिसर्च पेपर भेजे और मैंने वो रिसर्च पेपर डॉक्टर साहब को भिजवा दिए। और डॉक्टर साहब जो हमारे जो समझी जी उनको ये हुआ कि जब वो ठीक मतलब हो गए, 7 दिन घर पे आ गए, तो 15 दिन बाद में हम लोगों ने उनको जयपुर से अजमेर की ओर लेकर आए। तो वो एम्बुलेंस में नहीं आए, वहां से कार में आगे की तरफ ड्राइवर के पास में बैठ कर आए। वहां से 3 घंटे का सफर है अजमेर और जयपुर का, वहां से बैठ कर आए और दूसरी मंजिल पे उनका घर है, उसके ऊपर वो चढ़ के गए, जबकि डॉक्टर साहब लोग कभी अलाउ नहीं करते उसके ऊपर जाने के लिए। तो वो ऊपर चढ़ के गए, हार्ट पेशेंट है और उनको बाईपास हुई थी मतलब। और उसके बाद ये कि लगातार उनकी इम्यून चल रही है और उनके श्वास में इतना उल्लेखनीय सुधार हो रहा है कि पूछो मत। मैं भी 1 आध महीने बाद उनके पास जाऊंगा मिलने के लिए, तब मैं उनकी पूरी तरह से वीडियो बनाकर फिर आप लोगों को दूंगा। तो ये मेरे पास केस मनी है, ये अद्भुत रिजल्ट रहा है। बहुत ही शानदार विकास वाली आपने इतने विस्तार से बताई है राकेश जी। और जो हमने देखो कितने अच्छे से कहा, और क्योंकि अब हार्ट पेशेंट कहा के करने डलेंगे, ठीक है, ऑपरेट होगा और कितने दिन बाद हो जाएगा नहीं पता। कितनी बातें उन्होंने बताई बड़े विस्तार से और बहुत जल्दी भी बताई ताकि समय कम लगे। ये बहुत मैं आपको जैसे शुक्रिया करूँगा राकेश जी। ऐसे टेस्टिमोनीज बहुत सारे हैं हार्ट पेशेंट के। मेरी मदर भी हार्ट पेशेंट है और मैं आप लोगों को इसको कंटिन्यू करते हुए कुछ चीज बता देता हूँ, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है तो मैं इसलिए खुद को पिन कर रहा हूँ। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, करीब 3-3.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। एक में 80% ब्लॉकेज थी, ठीक है, और एक में मतलब कि उनको अटैक आया था, साइलेंट अटैक था, उनमें से किसी को भी नहीं पता चला, ठीक है। और आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप सबको बता देता हूँ, ठीक है, और वो आईसीयू है और मैं यहाँ पर मौजूद आप लोगों के पास में, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी की जब मैंने डिटेल डॉक्टर को बताया कि हार्ट पेशेंट है, एक भी टैबलेट उनकी मेडिसिन के रूप में नहीं चलती है, उसने नहीं माना। आई कांट बिलीव के ऐसा डॉक्टर ने लिखा नहीं, मैंने डॉक्टर ने 12 लिखी थी और जिस डॉक्टर के अंडर में है डॉक्टर एस चक्रवर्ती नाम है, उन्होंने 12 मेडिसिन लिखी थी, लेकिन मैं एक भी नहीं दिया इस 3 सालों में। स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैंने दिया और अभी भी वो उस आईसीयू में सबसे बेस्ट मतलब कि सबसे स्वस्थ पेशेंट है। उनके चेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, लंग्स में इंफेक्शन हुआ है डस्ट एलर्जी की वजह से। लेकिन अगर मैं आप लोगों को उनका वीडियो दिखाऊंगा तो आप कह ही नहीं सकता, अब उनकी एज 80+ है और वो हार्ट पेशेंट है और उनके हार्ट के सारे पैरामीटर्स 100% स्वस्थ हैं, फिट एंड फाइन है। इको भी आ गया, इको भी हुआ है अभी उनका, सारे ब्लड टेस्ट भी हुए हैं उनके, ईसीजी भी हुआ है, सब कुछ मतलब सब कुछ राइट। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई एडवाइस नहीं कह रहा कि आप दवाइयाँ छोड़ो, बट मैं बता रहा हूँ ये मेरी मदर है, 80+ है और कोई भी इको स्प्रिन जो होती है मतलब ब्लड को पतला करने वाली भी मैं नहीं देता हूँ, राइट। हाँ जी, वो भी नहीं देता। तो वो मस्ट होती है, 100% मस्ट होती है। हार्ट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं वो भी नहीं देता। तो कृपया करके ऐसा ना करें, कोई ऐसा ना करे कि मैंने बोल दिया तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को और क्या क्या करना है और मैं क्या क्या दे सकता हूँ, वो मैं देता हूँ, राइट। तो थैंक यू कहूँगा राकेश जी को, थैंक यू सो मच सर, आपने जो किया टेस्टिमनी दिया राइट। तो चलिए, अच्छी लगी है तो चैट बॉक्स में कुछ तो बोल दो, कुछ तो बता दो,
जल्दी से बताइए ताकि मैं नेक्स्ट चलाऊं। आना है सेट बॉक्स में कुछ शानदार, अमेजिंग, ग्रेट। यस, चलिए एक और टेस्टिंग करने की बात चलते हैं। भीम जी को बुलाते हैं। ग्रेट। भीम निवार, वीडियो ऑन। भीम जी सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर। वीडियो ऑन नहीं हो रहा। ग्रेट, अभी करिए। ओके, प्लीज वेलकम भीम जी। जी नमस्कार सर, थैंक यू सर। नमस्कार, जी मैं भीमनाथ तेजपुर आसाम से सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। प्लीज बताएं भीम सर। जी सर, ऐसा है सर, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मेरा 2013 से मेरा न्यूरो का प्रॉब्लम था और एंटी वायरल में मैं डिस्प्ले था, सारा स्पोनल असिस्ट था और मेरा ब्रेकल डिवाइस में मैं डिसेबिलिटी में राइट और बिल्कुल मेरा क्या हो गया था, बोलने से मतलब बिल्कुल काम नहीं करता था। कमर दर्द इतना होता था, बिल्कुल मतलब ये हालत था कि मतलब कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे बाइक चलाते हैं वहाँ भी मेरा बहुत तकलीफ था। तो मैंने एटॉमी का जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होते किया है ना, जैसे मीटर सिटी के ला गया, उसके बाद में आपका रोटी आया, आपका ये एक्सपीरियंस जो भी आया, जो भी आया मैं करते करते यूज करते किया, मेरे को पता ही नहीं चला वो तो मैं कैसे अचानक मेरा सब चीज मेरा ठीक हो गया। तो मैं जब रिटायर आया था मेरा वेट था 57 सर, 57। अभी मतलब रिटायर हुआ मैं 9 साल हो गया, अभी मेरा वेट है अभी 63 से डाउन में हो रहा है, 63-64 ऐसा चल रहा है। मैं कोई वेट बढ़ाने के लिए कोई मैंने पैसा दवा या सप्लीमेंट कोई नहीं, जैसे मैंने एटॉमी का सप्लीमेंट यूज करके दिया तो मेरा वेट भी अभी बैलेंस हो गया और बीपी लो था, बीपी भी मेरा लो था। तो जो ऐसे इसका प्रोडक्ट आते गया लेते गया तो मैं जैसे इसका प्रोटीन लेके उससे रिजल्ट मिलता है बोले सुना था। मेरे को बार बार मेरे जैसे बाइक चलाता हूँ उसमें भी मेरा चक्कर आता तो उठना पड़ता है ना, कभी बाहर रात को बाहर बाथरूम के लिए निकलते हैं तो उस टाइम भी मतलब चक्कर लगता है, वो भी पहले से तो बहुत ठीक है ना। तो ये है मेरा मेन टेस्टिमोनी और मेरा क्योंकि अभी ये माल है मेरा पहले बहुत कम था सर, इसका प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर, जो कि आपका प्रोडक्ट है। तो करते करते भी हम तो सभी एटॉमी का प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं। तो बाकी और भी मेरा भीम सर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जैसे आपने बोला आप आर्मी से थे, ठीक है, और आपको न्यूरो का प्रॉब्लम था और बैक प्रॉब्लम था, राइट? तो क्या डॉक्टर ने क्या बोला था अल्टीमेटली? डॉक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे ताकि लोगों को समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम क्या थी और इसका क्या हो सकता था या वहां से नहीं हुआ। और यहाँ पे आपने जैसे प्रोडक्ट तो आपने बताया ऑलमोस्ट सारे ले लिया आपने, थोड़ा सा उसको ब्रीफली में बताएंगे। मतलब ऐसे सर, जब मेरा 2013 में मैं जॉब में था तो उस टाइम मैं थोड़ा गिर गया था, उस टाइम पे इतना तकलीफ हुआ तो वहाँ से मैं श्रीनगर गया, आर्मी का हॉस्पिटल गया, उसके बाद उधमपुर गया, उसके बाद दिल्ली आराम में गया, करते करते मेरा हॉस्पिटल बहुत मैंने देखा। तो मैंने उसका वहाँ पे क्या फिजियोथेरेपी चल रहा था और वो जो प्रोडक्ट था मैं लेता रहता। फिजियोथेरेपी तो बहुत किया मैं, लेकिन उसमें कोई मेरे को फर्क नहीं, कोई बिल्कुल कोई फर्क नहीं। तो रिटायरमेंट आने के बाद भी मैं वो ज्वाइन पेन का जो भी था वो दवा लेता था मैं। बाद में जब एटॉमी का सप्लीमेंट यूज करना शुरू किया था मेरा रिजल्ट मिला है। मतलब बोलने से जो भी प्रोडक्ट है अभी भी मैं यूज कर ही रहा हूँ। अभी सर एक महीना पूछो, हीमोइन यूज किया था क्या? बिल्कुल सर, हीमोइन तो मैं साल में कम से कम 3-4 महीना यूज करता हूँ, दूसरी तकलीफ भी मैं यूज करता सर। ओमेगा कंटिन्यू है, ओमेगा है, सिलाटी स्पिरुलिना, मोरिंगा है ना, जैसे ब्लैक कॉफी, मतलब एक से एक नहीं है तो एक ना एक तो प्रोडक्ट यूज करते रहता हूँ। तो आपने जो प्रोडक्ट यूज करा ओमेगा, आपने जो प्रोडक्ट यूज करा हीमोइन और आपने जो प्रोडक्ट यूज करा शिलाजीत, ये सबसे ज्यादा काम था।
और अगर आपने न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स यूज करा होगा तो उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो उनको। शुरुआत में तो वही न्यूट्रास्यूटिकल से ही स्टार्ट हुआ था सप्लीमेंट, तो देखो मैंने बोला ये सर Right. सर 1 महीना हो गया मेरे को। क्या हो गया, आप कहिए जो लकड़ी का ऊपर कांटी होता है, कांट पुराना कील, तो मेरा पैर में हाँ। लेफ्ट वाला पैर में फंस गया, बहुत आंदोलन किया था। तो एक हमारा रिवाज था घर से पहले से, जैसे पैर में कोई ऐसा कील फंस गया था, हम लोग क्या कपड़े का बटन का कपड़े में तेल, मिट्टी है जो खाने वाला तेल है, उसको भिगा के हम उसको जलाते थे, बाकी मारते हैं उसको। तो मतलब आपका सेफ्टी का ना हो उसके लिए वो हम करते थे। ठीक है, वो सेफ्टी ना हो उसके लिए मैंने उसको बाकी मारा तो बाकी मेरा ठीक नहीं हो, बहुत ज्यादा था। बाद में तो पूरा शरीर में मेरा चलना भी तकलीफ है, सब गेट खुले पड़े हैं। बिल्कुल ये गेट उसके बाद में वाला खुला, उधर का भी खुला। क्या अरे तीनों गेट, वो दो तो अभी खुले देखे मैंने। अभी उसमें सुई में धागा है क्या? हमको देख, चादर तो बिछा यार, कितनी बार बोलूं, गद्दे खराब हो रहे हैं। धागा पुरोया है क्या? वो गीला गीला उसके ऊपर रख दिया है। अब करेंगे क्या? उन्होंने सजेस्ट किया कुछ आपका एंटीबायोटिक ये सब ऐसे रखे हैं, ये सब पे ऐसे करके रखे हैं। ढंग से डाल के खेले में रखना सामान। जैसे चलते पत्थर से वहाँ पे लग गया, ये क्या है? वहाँ पे चादर बिछाए पहले सुबह शाम, सुबह खाली पेट, शाम को भी खाने से पहले तभी वो बहुत अच्छा हुआ है। तो ये है, बाकी और भी मेरा मिसेस का भी टेस्टिमनी बात में कभी बताऊंगा। सर एक बड़ा 20 साल है, नेपाल से उनको बॉम्बे में कैंसर था, उनको मैं कलकत्ता अमन हॉस्पिटल में मिला था 2023 का नवंबर दिसंबर। तो उनको भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने उनको बॉम्बे में ट्रांसप्लांट के लिए बताया था सर। एक मिनट मैं दोबारा से रोकना चाहूंगा हिंदी, क्योंकि ये डिफरेंट टेस्टिमनी है और फिर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने लास्ट टाइम भी इसको कवर करा था। तो इस टेस्टिमनी को हम लोग फिर से बहुत अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि ये एक और मतलब कि एक और ऐसा टेस्टिमनी होगा जो शायद अलग हो सकता है। तो इसको जरा बहुत अच्छे से बताइए वो कौन थे